ऐसा रोल जो कि कभी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में था भी नहीं, और अगर था भी, then it was one of historical shame for having betrayed the national struggle for independence. Even after desperately fixing or trying to fix themselves in the historical struggle of independence, they have not been able to do it completely, because it is almost impossible to forget the countless times the Sangh or the RSS have stabbed the movement, be it at the time when they prohibited the workers from joining Gandhiji's call for satyagrah, or be it their refusal of endorsing the tricolor flag. और आज के तारीख में हम ये देख रहे हैं कि वही लोग जो उस समय में आज़ादी के आंदोलन को जिन्होंने बैकस्टैब किया, एक तरीके से जिन्होंने बिट्रे किया, उन्हीं लोग आज हमें बता रहे हैं कि नेशनलिज्म क्या होता है। वो हमें बता रहे हैं कि नेशनलिस्ट होना क्या होता है। वो हमारे लिए लॉज बना रहे हैं, और इन्हीं में हम लोग देख रहे हैं कि एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं जिसमें सारे जो लोग हैं जिन्होंने भी झेला है इस गवर्नमेंट को, जो मुसलमान हैं, जो पिछड़े आदिवासी दलित महिलाएं हैं, मूवमेंट्स में हमने देखा है, जब एनटीसीए का मूवमेंट हुआ और जब अभी भी जो फार्मर्स मूवमेंट चल रहा है, हम देख रहे हैं कि एक ऑल्टरनेटिव, जो एक नया एक आज़ादी का डेफिनेशन इमर्ज होते हुए हम देखते हैं, जिसमें लोग, people are actually contesting this hegemonic idea of nationalism that is being portrayed by the government. In the words of Vinod Mishra in his famous essay, Mere Sapno Ka Bharat, he writes that no idea is absolute, no society is perfect. Whenever a society has been conceived as the embodiment of the absolute idea, shock waves emerging from deep within have shaken its very foundations. And then amidst the despair, all around new dreams arise. कोई विचार परम नहीं होता, कोई समाज पूर्ण नहीं होता। जब जब किसी समाज को किसी परम विचार का मूर्त रूप माना गया, तब तब उसकी गहराइयों से उठे भूकंप के झटकों ने उसकी बुनियाद को हिलाकर रख दिया, और तब चारों ओर फैली निराशा के धूप अंधेरे के बीच नए सपने खिलखिला उठे रहे। With this, I would like to invite our today's speaker, Shamsul Islam sir. Shamsul Islam sir has been a professor of Delhi University. He has been an author, a columnist, a dramatist, and he has also written very prolifically and consistently about the role of RSS and about the dehumanization and totalitarian, about this dehumanizing and totalitarian regime. He is also globally known for his fundamental research work on the rise of nationalism and its development in India and the world. Today, Professor Islam is going to speak to us or talk about India's freedom and Sangh's betrayal yesterday and today. तो इसी के साथ मैं प्रोफेसर शमशुल इस्लाम को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और अपनी बात करें। जी, Lopamudra, I am already here, and thank you for such an impressive introduction to the whole theme. And you speak two good Hindustani and English both, so that's very good. And thank you. So first of all, let me congratulate heartiest greetings to all of you, to Lopamudra, to other friends who are listening, comrades, Aisa comrades, on the 75th birthday, on the 75th anniversary of our India, our motherland. And that is also true that 75 years after the independence, what we are seeing, this was not what those people who fought for the freedom struggle, they had even thought of it. Of course, there were martyrs like Bhagat Singh who could foresee the way India was moving and the way Congress was
cozying up with the British rulers that this would be end of the Gora Raj. This was the white men would go, but black Indians would capture power. But even saying that, nobody could think what has happened after Modi's coming to power in 2014. 2014 में इनके पावर में आने के बाद, ये इससे पहले जो लोग भारत में राज कर रहे थे, उन्होंने भी हमारे देश की आजादी का जो सपना था, उस सपने के साथ बहुत खिलवाड़ किया था. उन्होंने जो ड्रीम था हमारा, मनुष्य मनुष्य का शोषण नहीं करेगा, मैन विल नॉट एक्सप्लॉइट मैन, सबको रोटी रोजी मिलेगी, घर मिलेगा, खाना मिलेगा, इज्जत मिलेगी, समानता मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, फ्रेटर्निटी होगी, तो उसके साथ धोखा हुआ था. लेकिन वो लोग जो थे वो फिर भी विश्वास करते थे कि देयर वाज अ फ्रीडम स्ट्रगल, एक संघर्ष हुआ था, अंग्रेजों को भगाना चाहिए था, हमको इक्वलिटी वाला समाज चाहिए था, हमको जस्टिस वाला समाज चाहिए था. लेकिन ये 2014 में जो बंदा प्रधानमंत्री बनकर आया, वो तो अपने आप को हिंदू राष्ट्रवादी कहता है. वो भारतीय राष्ट्रवादी नहीं कहता है, वो अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं कहता है, वो कहता है मैं हिंदू राष्ट्रवादी. और हमने ये समझना चाहिए कितना क्रिटिकल आज इंडिया कहाँ पर खड़ा है कि हिंदू राष्ट्रवादियों ने फ्रीडम स्ट्रगल में क्या किया था. वो इतना शॉकिंग है, वो इतना दिल तोड़ने वाला है. लेकिन आपको फिर वो इसके लिए भी इंस्पायर करता है कि आपने लड़ना ही है इस गैंग के खिलाफ. और लोपामुद्रा कॉमरेड, मैं एक ये कहना चाहूंगा कि जब आप आरएसएस को संघ कहते हैं ना, संघ परिवार, तो ये तो गैंग है, ये परिवार नहीं है, ये कोई संघ नहीं है, ये तो गैंग है गुंडों का, देश को बेचने वालों का, हथियारों का. ये जिन्होंने पूरे देश को गिरवी रखवा दिया, जो लोग शामिल थे गांधी जी की हत्या में, और जिन्होंने रोटी रोजी की चिंता नहीं करके हिंदू मुसलमान, हिंदू को लड़वाने का काम किया है. तो ये बहुत बुरा वक्त है कि एक ऐसा गैंग जिसने आजादी की लड़ाई का विरोध किया था, विरोध ही नहीं किया था, अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, मुस्लिम लीग के साथ मिल गए थे, तो उसको हमको जानना जरूरी है. मैं जो सबसे पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, पिछले in last 40 years I have collected original RSS documents. I spent 4 decades in collecting RSS documents, and I challenge RSS to deny the documents which I have of theirs कि those are not their documents, right? So ये 40 साल में मैंने RSS का जो डॉक्यूमेंट्स है, और ये मैं आपको बता दूं कि दशहरा का दिन 1925 में इसका जन्म हुआ था, और 15th August 1947 our देश became independent in the sense that Britishers went away, the Union Jack came down and tricolor went up. That was a change of a flag, and of course much had not changed. So far as people of this country is concerned. Earlier I told that Bhagat Singh said that what we are visualizing, that white looters, white exploiters will go, and those will be replaced by black Saabs. So in fact that was what had happened. So what the 25 Dasahra to 15th August 1947, I collected all their documents in Hindi and English, and there are plenty of the documents in Marathi also which I cannot read, and I did not have access to copy and to put that in a computer, but I put all RSS documents of their archives on a computer, and I did what I call it a thematic indexing. What I did, that I put on, I started searching, what kind of themes in this. Let me just tell you. You want me to relate this in Hindi or English? Lopamudra, what do you want? Sir, in Hindi it is fine, sir. Achha, Hindi is fine. Yes. I chose some themes
in order to find traces of that kind of thing in the documents of the RSS. For instance, I tried to find out अंग्रेजी शासन को criticize करने वाले references in the RSS literature. This is thousands of pages, you know. That was in that literature. Is there any reference criticizing the British rule? None, not even once. अंग्रेजी शासन के गुणगान करने वाले संदर्भ. How many references in which they praise the Britishers? 16. Very, very vocal, right? अंग्रेजी शासन that ever they sang Vande Mataram, या वंदे मातरम गाने को कहा उन्होंने? बिकॉज टुडे आरएसएस ये नारा लगाती है मुसलमानों को, कम्युनिस्टों को लेके कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा. मैं आई ट्राई टू फाइंड आउट 25 to 15 अगस्त 1947 के आरएसएस का लिटरेचर में कहीं पर भी उन्होंने वंदे मातरम गाया है या किसी को वंदे मातरम गाने के लिए कहा है? नल, नो रेफरेंस टू दैट. They did not know that there was a song like Vande Mataram. Though Vande Mataram is itself a debatable, we can have debate sometime later. Then, how many references were there in this literature, which I put on computer, ki minorities, threatening minorities, opposing minorities, declaring them non-Indians? 74 references. When whole India was fighting for all inclusive, Hindu, Muslim, Sikh, all castes had united 1857 onward. They were shoulder to shoulder. They were not only nurturing the land of this country with their sweat, but also their blood. You know, that was the time they are saying that Muslims are not the part of the Indian nation. Christians are not part of the nation. Shudras cannot be treated as equal. Women, Hindu women cannot be treated as equal. And they were talking of Manu Smriti. And then how many references in that literature of criticizing or denigrating freedom struggle? 16. And some of those I will read. उसमें से बहुत सारे मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा अभी. स्वतंत्रता आंदोलन के फेवर में एक भी नहीं, नील. अंग्रेज शासकों से भारत छोड़ने का डिमांड करने वाले रेफरेंसेस एक भी नहीं. In this whole lot of RSS, this criminal literature, even once they did not ask the Britishers that you should leave. They are on the other hand, we will find very soon, they are saying कि अंग्रेजों को रहना, हमको आजादी नहीं चाहिए क्योंकि आजादी से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये सारे धर्मों का राष्ट्र बनेगा, ये हमको मंजूर नहीं. भारतीय स्वतंत्र, you know, freedom struggle 1857 onward had many milestones. जलियांवाला बाग, चौरी चौरा, right? Qissa Khwani Bazaar massacre that was in Peshawar, right? Udham Singh's martyrdom, right? So did they discuss even once these milestones of Indian freedom struggle? No, never. Their whole literature is devoid of name of Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev, Ashfaqullah, Ram, Rajinder Lahiri. No reference to these revolutionaries. No reference to Jallianwala Bagh. No reference to Chauri Chaura. Nothing, right? And then अंग्रेजों के what was there any reference to the martyrs of India's freedom struggle? Absolutely not even once. शहीदों और शहादत को denigrate करने वाले context references 10. You know, 10 references where they are denigrating the whole tradition of martyrdom. And then they are very fond of tricolor. वो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जेएनयू में जाके ट्राई कलर लगाते हैं, है ना? तो any reference to tricolor in their literature? Absolutely not. And how many references denigrating tricolor or
Indian Constitution more than 10 references in which they are denigrating. I will read some of those their documents. और फिर उसके बाद that India should have Swadeshi. Any demand for that? Absolutely no demand. Right? So now I come directly to their documents. You know, आपको कोई आरएसएस का क्रिटिक का जरूरत नहीं है, उन्होंने जो गद्दारी की उसको जानने के लिए. You need not to read a writing by a critic of the RSS or Hindutva to know that they did not backstep. They stepped us from front. You know, they were with the Britishers. They were with the Muslim League. They were Britishers and with the Muslim League in denigrating, in seeing to this that freedom struggle fails, right? And I am reading now from the biographies published by RSS of its founder, Dr. K.V. Hedgewar. The dictionary biography by C.P. Bishikar, संग वृक्ष के बीज, Dr. Keshav Rao Hedgewar in Hindi. It writes, संघ की स्थापना के बाद डॉक्टर साहब अपने भाषणों में हिंदू संगठन के संबंध में ही बोला करते थे. सरकार पर प्रत्यक्ष टीका नहीं के बराबर रहती थी. यानी there was no direct reference to the British government and he used to talk only of the Hindu Samaj. And he also, why was he saying that? Because he believed Hindu संस्कृति हिंदुस्तान की जिंदगी की सांस है. Hindu culture is the सांस of the India. और अगर आप हिंदू कल्चर को छोड़ देते हैं तो फिर that India is not our India. इसलिए यह स्पष्ट है कि अगर हिंदुस्तान की रक्षा करनी है तो हमें सबसे पहले हिंदू संस्कृति का पोषण करना होगा. यानी anybody who says that हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, असमी संस्कृति, बिहारी संस्कृति, कश्मीरी संस्कृति, क्रिश्चियन संस्कृति को साथ लेना है, नो. हिंदू संस्कृति, and what हिंदू संस्कृति? That also of मनुस्मृति. इस हिंदू संस्कृति में जो हिंदू मीट खाते हैं वो हिंदू नहीं है. हिंदू औरत हिंदू नहीं है. शूद्राज हिंदू नहीं है. राइट? तो हिंदू संस्कृति यानी ब्राह्मणिकल. सो उनका जो पूरा आइडिया था कि अगर आप ब्राह्मणिकल वे ऑफ वर्ल्ड व्यू को नहीं मानते हैं तो हम फिर उस स्ट्रगल के साथ नहीं जाएंगे. फॉरगेट अबाउट डिनाइंग राइट टू बी इंडियन ऑफ मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस. दे हैड forced out 95% of the Hindus also by this definition. And उसके बाद you know how he is making fun of those people who are going to jail. ये इसका बायोग्राफी में लिखा है, आज जेल जाने को देशभक्ति का लक्षण माना जाता है. जब तक इस तरह की क्षणिक भावनाओं के बदले समर्पण के सकारात्मक और स्थायी भाव के साथ अविराम प्रयत्न नहीं होते तब तक राष्ट्र की मुक्ति असंभव है. What is out of biography writing is saying about those people who are going to jails कि ये दिखावे की राष्ट्रभक्ति है, तो हम तो जेल जाते नहीं. इसीलिए देखिए गोलवालकर जो इसके बाद हेडगेवार के बाद जो आरएसएस का मुखिया बना, उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय 1939 में आरएसएस में आ गए थे. उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी 1940 के अंदर आरएसएस में आ गए थे. राइट? ये लोग कभी आधे मिनट के लिए भी ये जेल नहीं गए, ये कोई इन्होंने गिरफ्तारी नहीं दिया, कुछ भी नहीं. इनमें से कोई मुझे बता दे उसका जो कीमत वो कह देंगे मैं दे दूंगा कि ये लोग आज बीजेपी के बड़े बड़े लीडर आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, नाना देशमुख, दीनदयाल उपाध्याय, एल.के. आडवाणी, ये कभी एक मिनट के लिए ये किसी धरने पर अंग्रेज के खिलाफ बैठे हो, इन्होंने कभी तिरंगे को लेकर बाहर निकले हो, ये कभी वंदे मातरम गाया हो, इन्होंने कभी कहा हो कि गौ हत्या को बंद करो, गौ को नहीं काटो,
15 अगस्त 1947 के बाद बोलते हैं, अंग्रेजों के जमाने में इन्होंने कभी नहीं बोला, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कभी नहीं गाया वंदे मातरम, ये कभी आनंद मठ लेकर और बंकिम चंद्र चटर्जी का बात नहीं किया इन्होंने 15 अगस्त 1947 से पहले। तो ये क्यों नहीं गए ये? क्योंकि ये जेल जाने से नफरत करते थे, ये अंग्रेजों के दलाल थे। और उसके बाद जो गोलवालकर आया, जो गुरु ऑफ हेट, प्रोफेसर रामचंद्र गुहा जिसको गुरु ऑफ हेट बोलते हैं, जरा उसका सुन लीजिए, उसका क्रिमिनल। यू वांट मी टू रीड फ्रॉम इंग्लिश और हिंदी? लोपामुद्रा, व्हाट डू यू वांट? सर हिंदी में पढ़िए। हिंदी इज ओके। रोज रोज के काम में लगे रहने के विचार की आवश्यकता का एक और भी कारण है। समय समय पर देश में उत्पन्न परिस्थिति के कारण मन में बहुत उथल पुथल होती ही रहती है। सन 1942 में ऐसी उथल पुथल हुई थी। उसके पहले सन 1930-31 में भी एक आंदोलन हुआ था, ये दैट वाज नमक विद्रोह, दैट वाज नमक सत्याग्रह। उस समय कई लोग डॉक्टर जी के पास गए थे। ही इज शेयरिंग एन एनेक्डोट। कुछ लोग, जब नमक आंदोलन हुआ तो दे केम टू डॉक्टर हेडगेवार और उनके साथ जो बातचीत हो रहा है जरा सुनिए, कितना बेशर्मी के साथ, कितना शेमलेसली इज टेलिंग दैट। ये जो शिष्टमंडल था ने डॉक्टर जी से अनुरोध किया कि इस आंदोलन से स्वतंत्रता मिल जाएगी और संघ को पीछे नहीं रहना चाहिए। उस समय एक सज्जन ने जब डॉक्टर जी से कहा कि वे जेल जाने के लिए तैयार हैं, तो डॉक्टर जी ने कहा जरूर जाओ, लेकिन पीछे आपके परिवार को कौन चलाएगा? सी देयर आर सम देशभक्त who have approached Hedgewar कि sir we want to participate in the struggle, so RSS must also join. So what Hedgewar is telling them, तुम्हारे परिवार का क्या होगा? यही सवाल वो भगत सिंह से भी करते कि तुम्हारे परिवार का क्या होगा, राजेंद्र लहरी से भी करते तुम्हारे परिवार का क्या होगा। तो बट दैट पैट्रियट उसने कहा कि नहीं, परिवार के लिए मैंने पैसा रख दिया है, और अगर मैं कुछ मुझे जुर्माना होगा उसके लिए भी रख दिया है। तो हेडगेवार ने क्या बोलता है उस पैट्रियट को, फिर तो तुम आरएसएस का काम करो, जो तुम्हारे पास पैसा भी है और ये सब है, और अपना वक्त क्यों खराब करते हो तुम फ्रीडम स्ट्रगल में? ये कौन बता रहा है? ये कोई कम्युनिस्ट नहीं बता रहा है, ये शमसुल इस्लाम नहीं बता रहा है, ये लोपामुद्रा नहीं बता रही है, ये गोलवालकर बता रहा है कि जो पैट्रियट लोग आरएसएस के मुखिया के पास आते थे, फाउंडर के पास आते थे कि सर आपको भी फ्रीडम स्ट्रगल में चलना चाहिए, और देखिए मैं घर बार छोड़कर आया हूं, मैं पैसा भी लेकर आया हूं, मैं अपने परिवार के भी पैसे का कि वो भूखे नहीं मरेंगे, ये बोलते थे कि तुम क्यों पागल होकर तुम जेल जाओगे? जेल जाना देशभक्ति नहीं है, तुम आके आरएसएस में काम करो। और आरएसएस का क्या काम है? हिंदू मुसलमान को लड़वाओ, मस्जिद के बाहर जाके ढोल बजाओ, मुसलमानों की शुद्धि कराओ, मुसलमानों के खिलाफ दंगा कराओ, ईसाइयों की शुद्धि करो। उसके बाद और सुनिए, अभी दिस इज नॉट द एंड ऑफ शेमलेस आइडियाज ऑफ गोलवालकर। संघर्ष के बुरे परिणाम होते ही हैं। देयर आर ऑलवेज बैड रिजल्ट्स ऑफ द स्ट्रगल। 1920-21 दैट वाज खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920-21 के आंदोलन के बाद लड़के उग्र हो गए। What is he denigrating? That after that non-cooperation movement, young people became उग्र हो गए बहुत, वो they became very aggressive. ये नेताओं पर कीचड़ उठाने का प्रयास नहीं है, लेकिन किसी भी संघर्ष के ऐसे परिणाम हैं जिससे बचा नहीं जा सकता। All struggles are bad because bad परिणाम होते हैं, इसलिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। That is his formula. सच ये है कि हम इनके परिणामों को नियंत्रित नहीं रख सके। सन 1942 के आंदोलन के बाद तो लोग अक्सर ये सोचने लगे कि कानून की परवाह करने की जरूरत ही नहीं है। Just imagine what is he saying. This is the time when 1942 was taking place. Today is a date. Today is a 13th date when about 500 places firing was taking place. Hundreds of Indians were being killed. Hundreds of them were being shot for carrying tricolor. वो ये कह रहा है, गोलवालकर ये कह रहा है कि that was bad, and
and that turned the youth into the militants. And then see how shamelessly he even discusses what was happening in the RSS. सन 1942 में भी कईयों के दिल में बहुत तीव्र भावनाएं उमड़ रही थी। उस समय भी संघ का नित्य कार्यक्रम चलता रहा। संघ ने डायरेक्ट रूप से कुछ ना करने का संकल्प किया, परंतु संघ के स्वयं सेवकों के मन में उथल पुथल चल रही थी। Just Lopamudra, imagine that what is he saying, that even the cadres of the RSS, they were honest young people, na? So they were also feeling bad and saying that why are we not fighting? And what is the justification? क्या justification दे रहा है ये? संघ बेकार लोगों की संस्था है, उनकी बातों में कुछ अर्थ नहीं, ऐसा केवल बाहर के लोग ही नहीं बल्कि कई अपने स्वयं सेवकों ने भी कहा। वो बहुत नाराज भी हुए, but they did not bother. They did not bother. The RSS did not bother. And what is it telling? Why RSS was not participating? That is also shared by Golwalkar. Golwalkar ये कहता है, we do not believe in territorial nationalism. We believe in religious nationalism. That was the reason that Muslim League also refused to participate in Indian freedom struggle, because they said that is for Hindus. We want freedom struggle of Muslims only. RSS saying is only Hindu. So the whole idea is territorial nationalism, that India is a territory, in that a nation which is known as Indian resides. No, they say no. It has to be either Hindu or it has to be either Muslim. और क्योंकि ये एक साझे नेशन के लिए लड़ाई हो रही है, इसलिए हम बाहर हैं. That was the logic on the basis of which Muslim League and Jinnah also kept out of this thing, right? So we did not participate. Why? Because we did not believe that India is a nation. India is either Hindu or Muslim. When Modi said in 2013, before becoming Prime Minister, that I'm a Hindu nationalist, that means all those who have Hindu names are Hindu nationalists. All Muslim names have Muslim nationalists. All name is Sikh are Sikh nationalists. So there is nothing like Indian nation. So RSS has been working to break India as a nation, and today they are continuing after coming to power the same thing. Uske baad, you know how he denigrated the martyrs. Please listen that the shameless words. कई लोग पहले इस स्पिरिट से काम करते थे कि अंग्रेजों को निकालकर देश को स्वतंत्र करना है। अंग्रेजों के औपचारिक नीति से चले जाने के बाद ये प्रेरणा ढीली पड़ गई। वास्तव में ऐसी प्रेरणा रखने की आवश्यकता ही नहीं थी। What is he saying? There was no need to have anti-British feelings. हमें याद रखना चाहिए कि अपनी प्रतिज्ञा में, अपने ओथ में हमने धर्म और संस्कृति की रक्षा कर राष्ट्र की स्वतंत्रता का उल्लेख किया। इसमें अंग्रेजों के जाने न जाने का उल्लेख नहीं है। What is he saying? That in RSS we take the oath of securing Hindu nation and Hindu culture, not Indian nation. So all those people who are dying for Indian nation, we do not treat their sacrifices. And what happened? That the fourth Sarsangchalak at that time, Balarao Devras, he was a young cadre at that time. So when Bhagat Singh's hanging was announced, Bhagat Singh Rajguru's hangings was around. So these Balasaheb Devras and his friends who were in the RSS, young people, they felt very bad and they wanted to do something for Bhagat Singh. They wanted to follow the Bhagat Singh's path. That was to oppose the Britishers, to do direct action, right? But they you know, in his own autobiography, this Balasaheb Devra says that we decided to meet. We did not want to go it on our own. We decided to meet Hedgewar Sahib, who was the chief of RSS at that time. What does he write in Hindi? Let me share with you that shameless, that you know, these criminals. हम सब मिलकर डॉक्टर जी के पास गए और बहुत हिम्मत करके मैंने अपना उद्देश्य डॉक्टर जी के सामने प्रकट किया. यानी they said that we are much perturbed, sir.
Guruji, we have come to you, we want to do something, we want to follow Bhagat Singh's रास्ता। हमारी योजना सुनकर डॉक्टर जी ने हमें इस बेवकूफी वाली योजना को त्याग देने की राय दी और संघ के कार्य को प्राइमरी समझने के लिए हमारे साथ बैठक की। They wanted to follow Bhagat Singh's path, they wanted to join नौजवान भारत सभा। उन्होंने कहा कि तुम किस बेवकूफी की योजना, एंड दिस इज नॉट शम्सुल इस्लाम सेइंग, दिस इज नॉट आयशा सेइंग, this is not some critic of RSS saying, this is who became the first, second, third Sarsangchalak of the RSS, Bala Devras। उन्होंने हमारे साथ बैठक की। ये बैठक लगातार 7 दिन रात के 10 बजे से 3 बजे तक चलती रही। 7 days he took a meeting of 7 days of these cadres who wanted to follow Bhagat Singh's path। सारी रात मीटिंग चलता था और उन्होंने बताया कि इस रास्ते से चलकर नहीं होगा, हमको हिंदू नेशन के बारे में सोचना है, हमको हिंदू नेशन के बारे में सोचना है। और 1 हफ्ते के बाद हेडगवार वाज एबल टू कन्विंस दिस पीपल हु वांटेड टू फॉलो भगत सिंह पाथ कि उनको आरएसएस के लिए काम करना चाहिए, भगत सिंह के लिए काम नहीं करना चाहिए। राइट। सो आज ये भगत सिंह का फोटो लगाते हैं, राजगुरु सुखदेव की बात करते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं, और उसके बाद फाइनली व्हाट ही सेड अबाउट द martyrs, listen, you must have a heart of stone to listen these criminal words of गोलवालकर। यकीनन ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को बलिदान कर देते हैं बहुत ऊंचे व्यक्ति हैं और उनका जीवन दर्शन बहुत मर्दानगी वाला है। वे औसत लोगों से सचमुच से जो चुपचाप भाग्य के आगे समर कर देते हैं और भयभीत व आक्रमणीय बने रहते हैं, बहुत ऊंचे हैं। फिर भी हमने ऐसे व्यक्तियों को समाज के सामने आदर्श के रूप में नहीं रखा है। लोपामुद्रा जी ही सेइंग कि हमने मार्टायर्स को आइडियल पर्संस के तौर पे हिंदू समाज में नहीं रखा है। व्हाई? हमने बलिदान को महानता का सर्वोच्च बिंदु जिसका मनुष्य आकांक्षा करे नहीं माना है, क्योंकि आखिर में वो अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल हुए, और असफलता का अर्थ है कि उनमें कोई गंभीर त्रुटि थी। What this criminal is saying that because martyrs were hanged, they were killed, they were butchered, so there was some problem with their cause। अगर वो मर गए तो उनके मकसद में भी गलती थी। यानी व्हाट इज ही सेइंग, बड़ी मछली छोटी मछली को खाते है और बड़ी मछली सही होती है। बिग फिश ईट स्मॉल फिश एंड इट इज नेचुरल functioning of the world, and if Britishers are winning, they have to be victorious because they are more powerful, so we worship the power। Martyrs who are killed, they are on the wrong path because they have been killed, right? And why were they saying this? Freedom struggle का उनका जो विरोध था, they are confessing themselves। Hedgewar is confessing this, Golwalkar is confessing this, and 14th August 1947, the organizer, English issue of the RSS organ, right? I'll read it. You want it to be read in Hindi or English? Hindi. Huh? 14th August, 15th August, India is celebrating the independence despite killings and other things. What RSS is saying in an editorial, हमको फेक नेशनलिज्म से बचना चाहिए। बहुत सारे दिमागी भ्रम और वर्तमान और भविष्य की परेशानियों को दूर किया जा सकता है अगर हम इस आसान तथ्य को स्वीकारें कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं और राष्ट्र का ढांचा उसी सुरक्षित और उपयुक्त बुनियाद पर खड़ा किया जाना चाहिए। स्वयं राष्ट्र को हिंदुओं द्वारा परंपराओं, संस्कृति, विचारों और आकांक्षाओं के आधार पर ही गठित किया जाना चाहिए। They rejected on 14th August 1947 the India which getting independence. They said because it's not a Hindu Rashtra, we do not accept this India.
We do not accept this freedom. And not only that, what they, the same, the same organ of the RSS, what did they say about the tricolor? The tricolor, I think, let me read first in Hindi, then English also, because the original was in English. 14th August 1947 RSS organ. जो लोग किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंचे हैं, वह भले ही हमारे हाथों में तिरंगे को थमा दें, लेकिन हिंदुओं द्वारा न इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा, न अपनाया जा सकेगा. That those people who by kick of fate have come to power, they may give into the hands of Hindus the tricolor. We are not going to accept this. We are not going to honor this. Hindus, right? 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है और ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हो बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदेह होगा. Tricolor has 3 colors and 3 colors are bad omen. RSS organ, RSS English organ saying that we do not accept this. 26 November 1949, Indian Constitutional Assembly passed the Indian Constitution. 26 November 1949. 4 days after that, organizer writes an editorial. We do not want this. We do not want this constitution. We want Manu Smriti. What is Manu Smriti? Manu Smriti is not against Muslims and Christians. Manu Smriti is a scripture which says that Brahma has created Brahmins from the face, from the shoulders Kshatriya, from the stomach Vash, and from the feet Shudras. And the job of the Shudras is to serve all the 3 castes. Right? And women have no right. I do not know whether we have time later on or in question answer sessions. I would like to read some of the shlokas of the Manu Smriti. So what kind of India they want and what kind of India in fact they have made so far also in last 6-7 years. So, but I'm keeping that for future discussion. You know, these people, what they are doing with India, they had to do it. They could not have done anything else. In fact, it was the foolishness of Indian political parties, parliamentary political parties, who gave them legitimacy by aligning with them in politics in 1967, 68, 69. You know, parliamentary communist parties and so-called those people who say we are bothered about communalism, about the slogan of Hindu Rashtra, they brought into the mainstream politics. Whether this was 77 Janata Dal Party or 67, 68, 69, communist parties, all so-called liberal parties entered into alliance with the RSS junction. So what legitimacy they have got today is that legitimacy, and RSS which does not believe in equality, it says that Hindu nationalism, casteism and Hindu nation are synonymous. Golwalkar said that in order to improve the breed of the Kerala Hindus, हमने नॉर्थ इंडिया से नंबूदरी ब्राह्मण भेजा और केरला के सारा हिंदू परिवार को, हिंदू औरत को अपना पहला बच्चा उस नंबूदरी ब्राह्मण के साथ सोकर पैदा करना होता था. ये हमने उत्तर भारत से भेजा ब्राह्मण केरल के हिंदुओं का रेस सुधारने के लिए. This such a criminal man who they talk of all Hindus are one, they say that but केरला का हिंदू जो है उसका ब्रीड इंफीरियर था, हमने उसके ब्रीड को इंप्रूव करने के लिए उत्तर भारत से हमने भेजा. So this kind of criminal, you know, this was North Indian Brahmanism, which they continue to talk as Hindutva. The same kind of Islamic Brahmanism,
which Muslim League did. What was Muslim League? Muslim League was representing high caste of Muslims, landlords, Nawabs of Muslims. RSS was doing the same thing. And I think I come to the end of my talk. Then just see what Savarkar did with the freedom struggle. These people, RSS people, describe his icon. उसका फोटो लगाया इन्होंने, उसका फोटो लगाया इंडियन पार्लियामेंट में, असेंबली के अंदर, महाराष्ट्र असेंबली के अंदर। काला पानी का जेल जो है उसको इसका नाम पर रखा है। पर क्या हमारे दोस्त जानते हैं कि इसने 5 माफीनामा लिखा, 5 माफीनामा लिखा, मेरे से गलती हो गया, मैं बिगड़ गया था, प्रोडिगल सन, मैं गलत रास्ते पर चला गया था, मैं आपके पास आ गया हूं। 1942 इन्हीं दिनों में जब पूरे देश में कत्लेआम हो रहा था, कांग्रेस बैन था, सारी पार्टियां बैन था, आरएसएस और मुस्लिम लीग मिलकर सिंध के अंदर, बंगाल के अंदर, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के अंदर मिलकर सरकार चला रहे थे। और बंगाल के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, एट दैट टाइम चीफ मिनिस्टर यूज्ड टू बी कॉल्ड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो मुस्लिम लीग की सरकार थी, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर holding the charge of Home Minister and also the Department of suppressing Quit India movement there, right? And this Savarkar, what was he doing when Netaji was trying to liberate India militarily by organizing INA, Azad Hind Fauj? ये 100 से ज्यादा, हिंदू महासभा ने 100 से ज्यादा अंग्रेजी सेना के लिए रिक्रूटमेंट कैंप लगाए, रिक्रूटमेंट कैंप कॉमरेड 100 से ज्यादा। और इसने भागलपुर के अपने भाषण में बोला, हिंदू महासभा के भाषण में, कि हमने 1 लाख हिंदुओं को भर्ती कराया है, हमने 1 लाख हिंदू को भर्ती कराया है, राइट? और अगर आप सुनना चाहेंगे तो वो ये कह रहा है कि जब नेताजी इज ट्राइंग टू लिबरेट, नेताजी कितना कुर्बानी कर रहे हैं, कैसे बचकर भागे हैं, कैसे कम्युनिस्टों ने उनको पिशावर से निकाला, उनको रूस भेजा, ये उनके जो है उनके जो सफर के बारे में, भागने के बारे में, उनके यहाँ से जो प्लान के बारे में जो लिखा है। सावरकर साफ लिख रहा है कि कोऑपरेटिव अलायंस विद द ब्रिटिशर्स इज द नीड ऑफ द आवर। अंग्रेजों ने जो डिफेंस काउंसिल बनाई, जिसमें मुस्लिम लीग भी नहीं गई, उसका डिप्टी चेयरपर्सन हिंदू महासभा का नॉमिनेटेड आदमी था, जो सावरकर ने नॉमिनेट किया। they played such a criminal, you know, ये जो कॉमरेड आप बोल रहे थे ना, यानी ये प्रोवर्ब ठीक है, पीठ में छुरा, पीठ में नहीं, इन्होंने सामने से छुरा घोपा, इन्होंने सामने देश की हत्या करने की कोशिश की। और व्हाट डिड दे डू इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री? उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए इन्होंने गांधी जी की हत्या की, इन्होंने पार्लियामेंट को घेरा गाय के नाम पर, पूरा जलाया पार्लियामेंट। बस इन्होंने पार्लियामेंट को जलाया नहीं गाय के नाम पर, जो कांग्रेस का अध्यक्ष का घर था वो जलाया इन्होंने, वो सब। ये किस तरह से सारे लोगों को भरभीत करके इन्होंने साधु और सबको, लाखों लोगों को जमा किया वहां। तो इनका काम है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। तो सच बात यह है, इनको हमने पूछना चाहिए, तुमको इस्तीफा देना चाहिए कि तुम जब बोलते हो कि मोदी जो है वो हिंदू राष्ट्रवादी है, तो तुम एक ऐसा राष्ट्र जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख सारी जाति है, तुम उसको कैसे तुम प्रधानमंत्री हो सकते हो? और बदकिस्मती से हम में से ना कोई कोर्ट गया, ना हमने कोई डिमॉन्स्ट्रेशन किया इसके खिलाफ, ना कुछ किया, और हमने हिंदू राष्ट्रवादियों को इस देश को तबाह होने की पूरा छूट दे दी है। और आप जानते हैं कैसे सुप्रीम कोर्ट इनका बांदी बन गई, पुलिस और ये सब इनका बांदी बन गया, और किस तरह से रेप किया जा रहा है। और अभी तो ये है कि हिंदू लड़की को आप रेप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम होगा जब मुसलमान कोई रेप कर देगा, या कोई सिख रेप कर देगा, या ईसाई कोई रेप कर देगा। वैसे तो
आप रेप करिए, कोई आप उसको लूटिए, आप मारिए, उसको जला दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन पाकिस्तान। वहां पर भी आप इस्लाम के नाम पे धर्म का झंडा उठा के आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप कुछ भी कर सकते हैं। जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए था, जिन्होंने गुंडागर्दी की है, जिन्होंने भारत के साथ गद्दारी की, जो आज भी गद्दारी करते हैं, मोदी को तो हमने जेल में डाल देना चाहिए जिस दिन उसने कहा कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। उसे कहना चाहिए, राष्ट्रपति ने उसको डिसमिस कर देना चाहिए कि तुम हिंदू राष्ट्रवादी हो, तो तुम सेकुलर डेमोक्रेटिक इंडिया को कैसे राज करोगे। और हम किसी को बैन करने की बात नहीं करते हैं, लेकिन सवाल ये है, ये आरएसएस के पर ये किताबें जो उनके डॉक्यूमेंट से है, सारी भाषाओं के अंदर है। मैं आयशा के साथियों से निवेदन करता हूं, उनको इसकी जितनी भी कॉपी चाहिए, जिस भी भाषा में, असमिया में नहीं है, बांग्ला में है, हिंदी में है, उर्दू में है, अंग्रेजी में है, तेलुगु में है, पंजाबी में, आपको जितना किताब चाहिए वो आरएसएस को पहचाने। और ये दास्तान गद्दारी की अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, और ये भी है, और देश की बहुत भाषाओं के अंदर आपको जितना कॉपी चाहिए, जितना कॉपी चाहिए, सिर्फ यह है कि लाइब्रेरीज में रखवाइए, साथी लोग मिलकर पढ़िए। ये मेरी तरफ से मैं आपको मैं गिफ्ट करूंगा आयशा को। बहुत धन्यवाद कमरे। Thank you so much, sir. Thank you for your enlightening speech and your enlightening talk. जैसे कि प्रोफेसर ने ऑलरेडी कहा ही है, कैसे आरएसएस का पूरा एक उसके फाउंडिंग के, जब से आरएसएस इमर्ज हुआ है, जब से आरएसएस का बर्थ हुआ है, उस समय से कैसे वो एंटी इंडियन पॉलिसीज को एक तरीके से फॉरवर्ड कर रहा है, जो कि ना कि आपके नेशन एक तरीके से पूरे स्ट्रगल को, स्ट्रगल इन द सेंस कि जैसे लोग जिसके लिए लड़ते हैं, लोग जैसे अपने बेसिक्स राइट्स के लिए भी जब अभी लड़ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। जो कि आरएसएस बोलता आया है कि वो नेशनलिस्ट है। अभी के टाइम पे जो उसका एक बोलता है कि हु इज अ नेशनलिस्ट, जिसमें वो अपने वो एक वाटर टाइट डेफिनेशंस बना के रखता है। तो प्रोफेसर ने बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया है कि कैसे उन्होंने बैक स्टेप नहीं, फ्रंट स्टेप किया है पूरे मूवमेंट को, कैसे उन्होंने पहले से ही एक तरीके से डीमोटिवेट किया है, कैसे उन्होंने एक पूरे कैपिटलिस्ट और कॉर्पोरेट्स के साथ मिलके उन्होंने एक इंडिया का एक विजन उन्होंने तैयार किया है, जिसमें कोई जगह नहीं है दलितों के लिए भी, ना ही आदिवासी के लिए, ना ही पिछड़ों के लिए, ना ही महिलाओं के लिए। इनफैक्ट जैसे प्रोफेसर ने ऑलरेडी कहा है कि उनके आइडिया में जो एक ब्राह्मणवाद है, उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को जगह मिलती है या उन्हीं को एकोमोडेट किया जाता है जो कि सच में वो सवर्णा होते हैं, जो कि जैसे उन्होंने कहा है कि जैसे जिस मनुस्मृति में जैसे दिया गया है, जो टॉप लेयर जो है हिंदुओं, सिर्फ उन्हीं के लिए जगह है। तो प्रोफेसर, हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो अगर आप, हाँ जी, तो मैं तो पहला क्वेश्चन है कि एक कैडर बेस्ड फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कितना बड़ा रोल है एक फासिस्ट स्टेट बनाने में? ये पहला क्वेश्चन है। वो असल में कैडर बेस्ड तो हमने नाजीज और फैशिस्ट ने जो किया हम आपके सामने है कि ये जो आप, ये अनरिलेटेड नहीं है कि आरएसएस वाले यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन को टारगेट कर रहे हैं। हिटलर ने जिस दिन सारी यूनिवर्सिटीज में सारे टीचर्स को, अच्छे टीचर्स को निकाल दिया, उनको जेल में डाल दिया, फांसी पर लटका दिया, सारे ट्रेड यूनियंस को फांसी पर लटका दिया, तो उसके बाद उसने एक बड़ा रैली किया और कहा कि अब नाउ वी हैव कैप्चर्ड यूनिवर्सिटीज, नाउ वी आर एबल टू कंट्रोल जर्मनी। यानी एजुकेशन को, सोचने वाले लोगों को जब आप कंट्रोल कर लेंगे, वो मैं आपको, आप चाहे तो उसका जो सेंटेंस है आपको पढ़कर सुना देता हूं मैं। नथिंग मेक्स मी मोर सर्टेन ऑफ द विक्ट्री ऑफ आवर आइडियाज देन आवर सक्सेस इन द यूनिवर्सिटीज। हमने जो यूनिवर्सिटीज को सारा खत्म कर दिया, उसमें जो हमारा, यानी नाजीज्म का यूनिवर्सिटीज में सक्सेस का मतलब क्या है? जो भी पढ़ने लिखने वाला टीचर है,
सवाल उठाता है, क्वेश्चन करता है, आप उसको जेल में डालो, उसको मारो, उसको लिंच कर दो। ये जो आरएसएस वाले लिंच करते हैं, ये सीधा हिटलर मसोलिनी से सीखा है। जितना कम्युनिस्टों को, प्रोग्रेसिव लोगों को, इवन रिपब्लिकन्स को उन्होंने जो लिंच किया है, पब्लिक लिंचिंग, दे यूज्ड टू एंजॉय पब्लिक लिंचिंग। प्रोफेसर को उसके क्लास से खेलेंगे, उसको खींचेंगे, उसको वहीं पर जान से मार। ये लिंचिंग जो है, लिंचिंग इज कॉमन इन ऑल फैशिस्ट सेटअप्स। तो ये कैडर बेस्ड पार्टी का, लेकिन कैडर बेस्ड पार्टी बहुत गुंडागर्दी और ये सब कर सकती है, लेकिन दुनिया का इतिहास ये भी बताता है कि कैडर बेस्ड, आप कितने भी बड़ी पार्टी हो, आप सबको एक एक एटम बम भी दे दो कैडर बेस्ड पार्टी का, लेकिन इंसान हार नहीं मानता है। ये सिर्फ क्या कराएंगे, बहुत नुकसान कराएंगे, ये पूरे देश को सिविल वॉर की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन लोग हार जाएंगे, लोग चलेगा नहीं, ये चल नहीं सकता है। जैसे मैं इटली का आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि वहाँ ट्रेड यूनियन पूरा पाबंदी लगा दी, तमाम कम्युनिस्टों को फांसी पर लटका दिया, ग्रैमशी जैसा लीडर जो था उसको जेल में डाल दिया, और वो उनको रिलीज किया तब वो जब उनको मरने वाले थे कि भाई जेल में नहीं मरे, तब उनको बाहर निकाला। जैसे यहाँ पर अपना इनको किया, स्टैन स्वामी को, फादर स्टैन स्वामी को किया जिस तरह से। तो वहां पर चमड़े का बहुत काम होता है, चमड़े का जूता दुनिया में सबसे अच्छा इटली में बनता है। तो वहां पर यूनियन में पाबंदी लगा दी कि आप कोई डिमांड नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो व्हाट वर्कर्स डिड देयर, वो सिर्फ लेफ्ट पैर का जूता बनाते रहे 1 महीना। उन्होंने कहा हमने काम तो नहीं रोका, हमने हड़ताल भी नहीं किया, लेकिन हम क्या करेंगे, हम बाएं पैर का ही जूता बनाएंगे, हम राइट पैर का जूता नहीं बनाए। और लोग देखिए लड़ते हैं। हिटलर तो सारी दुनिया पर राज करता था, सारी दुनिया को आर्यंस क्या हाल हुआ, जाकर वो कैसे मरा नीचे, अपने आत्महत्या की। हमने देखना ही है कि ये लोग देश को आत्महत्या ना करा दे, और उसके लिए आयशा है, कितने साथी हैं, सब लोग लड़ाई लड़े, तो ये बहुत नुकसान करेंगे। लेकिन कैडर बेस्ड हो, इनका जितना भी कैडर है ये पावर को पूछता है। अगर औरंगजेब का राज आ जाएगा, ये इसको भी पूजने लगेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये खाना है, लूटना है, इन्होंने अंबानी अडानी की सेवा करनी है। भाई मैं कॉमरेड एक सवाल करता हूँ आरएसएस वालों से, अगर तुम हिंदुओं के इतने चिंतक हो तो तुम एक काम करो, सारे हिंदुओं को फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन, फ्री हेल्थ, जॉब, फ्री ट्रांसपोर्ट कर दो, ईसाई मुसलमान को मत करो। पाकिस्तान के रूलर से भी मैं यही डिमांड करता हूं कि तुम, अगर वो पाकिस्तानी मुसलमानों का राज है, तो मुसलमानों को, आम मुसलमानों को नौकरी दिला दो, उनको हेल्थ फ्री कर दो, उनको एजुकेशन फ्री कर दो। उन्होंने ये नहीं करना है, इसलिए हिंदू मुसलमान का सवाल था। ठीक है ना। और मैं एक और डिमांड करता हूं इनसे कि अडानी अंबानी तो अपने आदमी है, हर बेरोजगार हिंदू को उसका एक शेयर अलॉट करा दो, एक शेयर, है ना। ये जो सऊदी अरब, पाकिस्तान के कैपिटलिस्ट, मुसलमान देशों के कैपिटलिस्ट जो उसका अंबानी अडानी के शेयर खरीद रहे हैं, वो शेयर उससे बोलो एक हिंदू को दे दो, उसमें एक साल में इतना कमाई हो जाएगा कि वो आराम से रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। 20-20 हजार रुपए का एक शेयर है, 30-30 हजार रुपए का एक शेयर है। एक शेयर हर बेरोजगार को, एक हिंदू बेरोजगार को एक शेयर अडानी का, एक शेयर अंबानी का दिला दो। और जिस हिंदू लाला जी का 4 दुकान है, उससे कहो 3 दुकान तो हिंदू बेरोजगार को दे दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हम भी हिंदू राष्ट्र के साथ हो जाएंगे। अगर आप 80% इस देश के लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, तो बिलीव मी, आई विल जॉइन देम। Thank you so much, sir. Thank you so much. Okay, so इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हिंदू आइडेंटिटी जो दलित बहुजन को ऑप्रेस करती है, उसके फॉर्मेशन में आरएसएस का कितना बड़ा रोल है? देखिए, विद द ऑन द राइट साइड ऑफ द पावर रूलर्स, है ना,
47 से पहले भी राइट साइड ऑफ द रूलर्स थे, अभी भी कांग्रेस में इनके बहुत लोग थे, नेहरू वगैरह को छोड़कर बाकी तो आरएसएस ही, कांग्रेस को आरएसएस ही चलाती रही है ना। पर बात यह है कि आप जब ये बोलते हैं ना कि एक रिलीजन एक तरह से सोचते हैं लोग, तो आप बहुत बेवकूफी का बात कर रहे होते हैं। आप जरा मुझे एक बात बताइए, ये ओपन सवाल है, मीट खाने वाला हिंदू होगा या नॉन हिंदू होगा? आरएसएस की परिभाषा होगी हिंदू नहीं होगा, लेकिन कश्मीरी पंडित मीट के बिना खाना नहीं खाता है। कश्मीरी पंडित जो मुसलमान है वो तो गरीब है, उसको मीट खाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कश्मीरी पंडित के घर में जब मौत होती है तो बकरे की कुर्बानी करनी पड़ती है। जो हमारा बिहार का, नॉर्थ बिहार का जो ब्राह्मण है वो मीट के बिना रहता है? बंगाल का ब्राह्मण रहता है? असम का ब्राह्मण बिना मछली के रहता है? केरल में तो हिंदू बीफ खाता है। गोवा के अंदर जो आरएसएस की सरकार है वो बीफ बिकवाती है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो आरएसएस की सरकारें हैं वो बीफ को कटवाती है और गाय को कटवाती है और बिकवाती है। तो आप करो ना कि बाकी सब हिंदू नहीं है भाई। आप जो बीफ के नाम पे मुसलमान को और दलित का लिंच करते हो, भेजो ना गोवा के चीफ मिनिस्टर को लिंच करने के लिए, वो तो बीफ ऑफिशियली कटवाता है। आप जिस दिन आप ये शुरू करेंगे तो आप विवेकानंद जी को भी आप मार देंगे एक दिन, अगर विवेकानंद जी आ जाए। विवेकानंद जी ने कहा कि एंशियंट इंडिया में वो ब्राह्मण नहीं हो सकता था जो गाय का मीट नहीं खाता था। तो अगर आज विवेकानंद आ जाएंगे तो आप उनको मारोगे। तो आप देखिए, एक चीज समझ लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत कहा कि व्हाट हिंदुत्व ब्राह्मणिज्म डज, it divides, it cuts. And we are starting dividing between Hindu and Musliman, then you also start dividing Hindus. ये मिजोरम और असम में क्या हुआ है अभी? As if Pakistan, we were fighting, Pakistan and India were fighting, और चाइना और इंडिया वर फाइटिंग। वहां मुसलमान कहां चला गया? What happened in February 2016 Haryana? 18 days Haryana burnt, 18 days. Hundreds of girls were raped. Not by Muslims, not by Christians. It is said that more than 50,000 crores worth of property was burnt in the name of caste. What is happening in Rajasthan? That tribal temples are being taken over by RSS. They are flying their Kesariya Jhanda. Jo Meenas are coming out. You know, with RSS around, you do not need any foreign enemy to destroy this country. That is why the fight is very essential. उनके रहते हुए इस देश को तोड़ने के लिए पाकिस्तान की, चीन की जरूरत नहीं है। यही लोग तोड़ देंगे और वो हम होने नहीं देंगे। तो ये आइडेंटिटी का जो सवाल है, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, व्हाट हैपेंड? मुसलमान 1971 में बांग्लादेश के मुसलमान ने कहा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, आप हमको बेवकूफ बना रहे हो, वी आर नॉट मुसलमान, वी आर ऑल्सो बंगाली। पाकिस्तान को किसी ने तोड़ा? हिंदू ने नहीं तोड़ा पाकिस्तान, ईसाई ने नहीं तोड़ा, मुसलमानों ने तोड़ा। When you start doing identity politics, you forget about class, you forget about caste, फिर आप आइडेंटिटी का पॉलिटिक्स करते करते फिर आप तबाही की तरफ ही जाते। थैंक यू सो मच सर। तो एक लास्ट क्वेश्चन है जो इंग्लिश में है। Professor, the person is asking, which political force do you think is most equipped to fight the RSS today? What is? Please read it again. Which political force do you think is most equipped to fight the RSS today? If you want my personal opinion, then communists. Right?
communists who believe in mass struggles, who believe in sacrifices, and against fascism, we will have to build a united front. We have to build a united front. These are the united fronts through which, you know, we sometimes believe that they are very vocal, they are very aggressive, they are indulging in Gundaism, so they are in majority. No, that's not a fact. That's not a fact. They are doing all this because Hindus are not with them. No, it's an issue of common sense. If all Hindus had joined them and Hindus were following them, they would not have done all these things, targeting Muslims and Christians. Hindus are not falling prey to their game, so वो हिंदुओं को डरा करके मुसलमान, तो इसके खिलाफ लड़ाई क्या लड़ा जाएगा? इसके खिलाफ लड़ाई जलाया जाएगा क्लास का, रोटी रोजी का, नौकरी का, जस्टिस का, और ओबीसी का रिजर्वेशन होगा, लेकिन हम काम करने का अधिकार का हम मांग करेंगे तो रिजर्वेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हमको लड़ाने के लिए वो रिजर्वेशन है। जो जॉब नहीं है उसके लिए हम लोग आपस में लड़ेंगे। इशू बहुत क्लियर है। एक बस है, 500 पैसेंजर है, 50 आदमी चला जाएगा अंदर, 100 आदमी चला जाएगा, 400, और वो अंदर वाले आपस में लड़ेंगे, वी वांट दिस और वी वांट 50 more buses। 50 more buses। आरएसएस क्या कर रहा है? उससे पहले कांग्रेस ने क्या किया कि एक बस रखो, रोटी का एक लोफ रखो, अपने पार रखो, एक टुकड़ा हमको फेंके, हमको लड़वाओ। निशांत का जो मेरा स्ट्रीट थिएटर ग्रुप है उसका एक प्ले है, टुकड़ा नहीं पूरी रोटी लेंगे। उसका एंड होता है कि हम वी विल स्नैच द होल लोफ ऑफ ब्रेड। हम एक टुकड़े पर नहीं लड़ेंगे, हमको काम करने का अधिकार चाहिए, हमको हेल्थ का अधिकार चाहिए, हमको एजुकेशन का अधिकार चाहिए। अगर ये लड़ाई लड़ेंगे, ये सबसे बड़ा गारंटी है उनके खिलाफ। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो दिस वाज आल्सो द लास्ट क्वेश्चन। Thank you. Lopamudra, comrade, thank you. You have been so good in leading us to proper discussion and other things. And